Let's start today's concept. Today we are going to discuss our new concept that is known as operators and expressions in Python. In our previous session, I have discussed with you the Python fundamentals, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था एक पाइथन के कोड को किस तरह से लिखना शुरू किया जाता है। आई हैव डिस्कस्ड विद यू प्रिंट स्टेटमेंट। मैंने आप लोगों के साथ प्रिंट स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। आफ्टर दैट वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, हाउ वी कैन टेक द यूजर इनपुट, हम यूजर इनपुट कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा हमने आउटपुट फॉर्मेटिंग और एफ स्ट्रिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा था। Today we are going to discuss some new concepts in Python, and these concepts are known as operators and expressions. Operators and expressions. Operators and expressions. In Python, we discuss mainly six types of operators. In Python, we discuss mainly six types of operators. First one is known as arithmetic operators. Arithmetic arithmetic operators. Second one is known as comparison operators. दूसरे को कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं, दूसरे को कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज नोन एज लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स। Fourth one is known as bitwise operators, bitwise operators. And the fifth one is known as assignment operators. And the sixth one is known as spatial operators. पाइथन में हमारे पास 6 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जिसे हम जनरली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन को कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड वन को कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, थर्ड वन को कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, फोर्थ वन को कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, फिफ्थ वन को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एंड द सिक्स्थ वन इज नोन एज स्पेशल ऑपरेटर्स। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज ऑपरेटर्स वन बाय वन। ओके, so first of all, let's start our today's concept that is known as operators and expressions. Before discussing all the operators, first of all, let's discuss what is the meaning of expression. What is the meaning of expression? What is the meaning of expression? What is the meaning of expression? You must have studied in your school time quadratic equation. आपने अपने स्कूल टाइम में quadratic equation, polynomial जैसे concepts पढ़े होंगे, स्टडी किए होंगे अपने मैथमेटिक्स की क्लास में। लेट्स सपोज मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे लिखी, 2 मल्टीप्लाई वाई प्लस 5, 2 मल्टीप्लाई वाई प्लस 5। सो इस तरह की एक इक्वेशन को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। So what is the meaning of an expression? An expression is an equation which evaluates something and provides the output. An expression is a equation that evaluates something and provides us some kind of a output. उसे हम एक expression कहते हैं। Or I can say that expression is a combination of operators and operands. Expression is a combination of operators and operands. Here यहाँ पर दो y and 5, these are known as operands. These are known as operands. इनको हम क्या कहेंगे? Operands कहेंगे। इन्हें हम 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 operands कहेंगे। While multiply और प्लस वाले साइन को हम operators कहेंगे। operators कहेंगे। So we can say that expression is a combination of operands and operators. Operands and operators उसे expression कहते हैं। और expression हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये किसी भी इक्वेशन को evaluate करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। So this is the concept of today's class. This is the concept of today's session. Operators and expression in Python. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ऑपरेटर्स 6 तरह के होते हैं। These are 6 types of operators in Python.
First one is known as arithmetic operators, second one is known as comparison operators, third one is known as logical operators, fourth one is known as bitwise operators, fifth one is known as assignment operators, and sixth one is known as special operators. Now let's discuss all these operators one by one. So let's start with first one, arithmetic operators. Inside the arithmetic operators, we generally discuss plus, minus, multiply, divide, double, single slash, double slash, double slash, next mode, next mode, next mode, next mode, and next exponent, next exponent, or I can say power, So these are the certain operators which we generally use in as a arithmetic operators in Python. Now let's discuss one by one. Let's suppose I have said 5 plus 3. So I have used plus operator here. I said 10 minus 2. I have used minus operator here. I said 12 multiply by 3. I have used multiply operator here. So हमने plus operator use किया, minus operator use किया, multiply operator use किया. Now, if I said 12 divide 2, so it has provided us result to 6.0. If the same division I have done with double slash sum, then in that scenario I have got 6 as an output. So single slash is known as normal division. This is known as normal division. This is known as normal division. This is known as normal division. And it also always provides provides float value. It's always provide float value. It always provide float value. It always provide float value. It always provide float value. And double slash is known as known as a floor division. This is known as floor division. इसे क्या कहते हैं? इसे floor division कहते हैं. इसे फ्लोर डिवीजन कहते हैं और ये हमें परफेक्ट इंटीजर देता है. परफेक्ट इंटीजर देता है. ये हमें परफेक्ट इंटीजर देता है. ये हमें परफेक्ट इंटीजर देता है. ये हमें परफेक्ट इंटीजर देता है. इन दिस सिमिलर वे अगर मैंने कहा कि 15 डिवाइड बाय 2, then I will be getting 7.5 as a result. If the same division I have did with the help of double slash, in that scenario I will be getting 7 as an output. 7 as an output. So this is the difference between single slash and double slash. Single slash means normal division and double slash means floor division. Double slash means floor division. Now, अगर मुझे पावर करनी है 2 की पावर 3, then I will be using double star. अगर मुझे 3 की पावर 3 करनी है, I will be using double star. 4 की पावर 2 करनी है, I will be using double star. इसको कहते हैं पावर. पावर के लिए हम क्या यूज करते हैं? डबल स्टार यूज करते हैं. किसी चीज की पावर करने के लिए हम डबल स्टार यूज करते हैं. किसी चीज की पावर करने के लिए हम डबल स्टार का यूज करते हैं. नेक्स्ट एक और बच गया है यहाँ पर जिसका नाम है परसेंटेज. दिस वन हमने प्लस देखा, माइनस देखा, मल्टीप्लाई देखा, डिवाइड देखा, डबल डिवाइड देखा, डबल स्लैश देखा, एक्सपोनेंट देखा. नाउ परसेंटेज इज नोन एज मॉडुलस. It provides us remainder. Let's suppose I have said 12 mode 4, then I will be getting 0 as a remainder. This is known as percentage sign is known as modulus. Modulus is known as modulus, or sometimes we call it as a moduli. Sometimes we call it as a moduli. It provides us remainder. ये हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है. लेट्स सपोज अगर मैंने कहा कि 12 को डिवाइड करना है 9 से, तो हमें रिमाइंडर 3 बचेगा. मैंने कहा 12 को डिवाइड करना है 5 से, तो रिमाइंडर 2 बचेगा. तो परसेंटेज का साइन हमेशा हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है. परसेंटेज का साइन हमेशा हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो ये सारे थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे. एक और एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझते हैं. लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिखा नंबर वन हमने लिखा 10, नंबर टू हमने लिखा यहाँ पे 20, नंबर टू हमने यहाँ पे लिखा 20, नंबर टू हमने यहाँ पे लिखा 20, नंबर टू हमने यहाँ पे लिखा 20, नंबर वन हमारे पास 10 है, नंबर टू हमारे पास 20 है. ओके, अगर मैंने कहा कि
प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करो? नंबर वन को प्लस करके नंबर टू के साथ। तो नंबर वन और नंबर टू को इसने प्रिंट कर दिया। इसको और भी अच्छे तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे कि नंबर वन प्लस नंबर टू, इन दोनों को प्लस करके सम में सेव कर दो। इन दोनों को सब प्लस करके सम की जगह ऐड में सेव कर दो। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए सब यूज करेंगे, नंबर वन को माइनस कर दो नंबर टू के साथ, नंबर वन को माइनस कर दो नंबर टू के साथ, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से हम बाकी वाले कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट डिवीजन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंट। ओके, प्लस के लिए एडिशन हो गया, माइनस के लिए सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई के लिए मल ले लेते हैं, और डिवाइड के लिए क्योंकि ये सिंपल डिवीजन है तो हम डिव रख लेते हैं। और हमारा फ्लोर डिवीजन रह गया अभी, इसको मोड कर देते हैं, इसको एक्सपोनेंट कर देते हैं। और एक और लेना चाहेंगे जिसके अंदर हम फ्लोर डिवीजन रखना चाहेंगे, इसको हम फ्लोर डिव कहेंगे, एफ डिव कहेंगे, इसे हम एफ डिव कहेंगे। लेट्स सपोज लास्ट क्लास में हमने प्रिंट स्टेटमेंट को देखा था, अगर उसके अकॉर्डिंग हमें इस चीज को प्रिंट करना होगा तो प्रिंट ए प्लस में बी इज इक्वल टू, क्यों ना यहाँ पर एफ स्ट्रिंग यूज कर ली जाए, क्यों ना यहाँ पर इस एफ स्ट्रिंग यूज कर ली जाए। बाहर आके मैंने एफ कहा और यहाँ पर मैंने प्लेस होल्डर दे दिया, यहाँ पर हम ऐड प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ए प्लस में बी हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा हो गया, इसको रिमूव करते हैं। ओके, इसी चीज को हम वापस कॉपी और पेस्ट देते हैं यहाँ पे। एडिशन की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोर डिवीजन हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सपोनेंट हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंट हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। एक्सपोनेंट के लिए डबल स्टार, फ्लोर डिवीजन के लिए डबल स्लैश, डिव के लिए नॉर्मल डिवीजन, और मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, और एडिशन के लिए प्लस। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई। दिस इज नोन एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। We generally perform arithmetic operations inside the arithmetic operators. Plus, minus, multiply, divide, floor divide, or exponent or exponent or floor division. आफ्टर दिस वी हैव कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेशन के बाद में हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं, इन इनसाइड द कंपैरिजन ऑपरेटर्स वी जनरली हैव सर्टेन ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इक्वालिटी के लिए डबल सिंबल चलता है, डबल इक्वल टू चलता है, और नॉट इक्वल टू के लिए ये सिंबल चलता है। सो दीज आर अवर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन है, होता रहता है कंपैरिजन। समवन इज ग्रेटर, समवन इज ग्रेटर, समवन इज लेसर, समवन इज टॉलर, समवन इज shorter, someone is shorter, someone is does not equal to, someone is equal to. So these are the comparison operators. Let's suppose I have said 12 is greater than 5. Yes, it's true. So इसका मतलब ये है कि comparison operator always provides us results. It provides us results, results it provides us results in boolean. boolean के अंदर हमें ये result provide करता है, बूलियन में हमें ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है। मैंने कहा कि 12 इज लेसर देन 10, 12 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू, ये बात सच है। जब मैंने कहा 14 इज लेसर देन 10, तो ये हमारी बात हमारे पास फॉल्स है। इसी तरह से मैंने कहा 18 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ये बात ट्रू है क्योंकि ये ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल टू जरूर है। इन दिस सिमिलर वे आई सेड 100 इज इक्वल टू 200, 200, ये बात फॉल्स है कि 100 इक्वल नहीं है। डबल इक्वल टू ये इक्वालिटी को चेक करता है, दिस चेक्स इक्वालिटी, दिस चेक्स इक्वालिटी, ये इक्वालिटी को चेक करता है, ये इक्वालिटी को चेक करता है। और नॉट इक्वल टू के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं, मैंने कहा कि 12 इज नॉट इक्वल टू 10, 12 इज नॉट इक्वल टू 10, और ये बात सच है, ये नॉट इक्वल टू का साइन है। दिस इज अ साइन ऑफ नॉट इक्वल टू, नॉट
इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ये नॉट इक्वल टू का साइन है। ओके, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अगर इसी चीज को हम अपने नंबर वन और नंबर टू के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहें कंपैरिजन ऑपरेटर्स को, देन दैट इज आल्सो पॉसिबल। हाउ कैन वी डू दैट? वी कैन परफॉर्म लाइक दिस। प्रिंट करना, प्रिंट करना नंबर वन को, और नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू के साथ कंपैरिजन करके, ठीक है, नंबर वन को नंबर टू के साथ कंपैरिजन करके, फर्स्ट वाले में ग्रेटर देन, सेकंड वाले में लेस देन, नेक्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, नेक्स्ट लेस देन इक्वल टू, नेक्स्ट इक्वालिटी साइन, एंड नेक्स्ट नॉट इक्वल टू। तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल जाएगा। So these are the comparison operators which generally compares two things. After discussing the comparison operators, now the next operators are known as logical operators. 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 Logical operators. The concept of logical operators has been taken in Python from the logical gates, which you must have studied in your engineering course. In your engineering course, in which you must have studied in the digital electronics, the concept of gates. The concept of gates. Concept of gates आपने जरूर पढ़ा होगा अपने engineering के अंदर, अपने engineering के course में, जिसमें हमारे पास एक concept था digital gates का। डिजिटल गेट्स के अंदर हमारे पास वी हैड मल्टीपल टाइप्स ऑफ गेट्स, एंड गेट, और गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सोर, एक्सनोर, और नॉट। The same concept has been taken in Python as well, but here we don't study these all gates. We have only three types of gates. First is and, second is first is and, second is or, and third one is not. Third one is not, and or not, and or not, and or not. uh, and provides us true when both, and provides us true when both of the conditions are true. And provides us true means we can say that and provides us true when both of the conditions are true. It provides false when any one of the condition is false. When any one of the condition is false. So we can say that it provides true. It provides true when both of the conditions are true. Both of the conditions conditions are true. Both of the conditions are true. Both of the conditions are true. Or or provides us true when any one of the condition is true. Or provides us true. Provides us true when any one of the condition is true, when any one of the condition is true, when any one of the condition is true. Not is just provides negation. It just provides negation. It just provides negation. Negation means opposite. 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 Means opposite. Okay, let's suppose I have said 12 is greater than 15. This is the first condition, that is false. And I have said 15 is greater than 20. 15 is greater than 20. This is also false. Let's make it true. Let's make it true. I said 20 is greater than 15, and I said 50 is greater than 20. Both conditions are true. If these conditions are combined with and operator, if these conditions are combined with and operator, so as per the condition of and, it provides true when both of the conditions are true. And in this scenario, both of the conditions are true. So we will be getting true as a result. We will be getting true as a result. If any of the condition is false, 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 पहले में दोनों ट्रूथ हैं, इसके अंदर मैंने अगर एक को भी फॉल्स कर दिया तो ये फॉल्स कर देगा, इस वाले को अगर मैंने फॉल्स कर दिया तो ये फॉल्स कर देगा, और दोनों को ही फॉल्स कर दिया तब ये
फॉल्स कर देगा। इसी चीज को क्या कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन। And on the other hand, or provides us true when any one of the condition is true। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तब भी वो हमें ट्रू दे देगा। लेट्स चेक। लेट्स सपोज ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है, और ये फोर्थ कंडीशन है। इसमें ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है, दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू है, और अगर दोनों कंडीशंस को मैंने और ऑपरेटर से जोड़ा तब हमें ट्रू मिलेगा। लेकिन दोनों में से अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है और एक कंडीशन ट्रू रहती है, फिर भी हमें ट्रू ही मिलेगा, फिर भी हमें ट्रू ही मिलेगा, फिर भी हमें ट्रू ही मिलेगा, फिर भी हमें ट्रू ही मिलेगा अगर हम इसे और कंडीशन के साथ जोड़ते हैं। अगर इसमें हमारे पास ये वाली हमारी फॉल्स हो गई थी, लेकिन इस बार अगर मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ, इसे फॉल्स कर देता हूँ और इसे और से जोड़ता हूँ, फिर भी हमें ट्रू ही मिलेगा। और अगर हमारे पास दोनों ही कंडीशन, और अगर हमारे पास दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब तो हमें फॉल्स मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हमने इसे और से जोड़ा, और अगर इसे हमने और से जोड़ा तब हमें फॉल्स मिलेगा। So I can say that, or we can say that, and provides us true when both of the conditions are true, or provides us true when any one of the condition is true, when any one of the condition is true। नॉट का मतलब क्या था, अपोजिट करना। नॉट मीन्स अपोजिट करना, नॉट मीन्स अपोजिट करना। लेट्स सपोज आई सेड नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स, और मैंने कहा नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू, नॉट फॉल्स मीन्स ट्रू। इस वाले रिजल्ट ने हमें ट्रू प्रोवाइड किया था, इस वाले रिजल्ट ने हमें ट्रू प्रोवाइड किया था। अगर इस रिजल्ट को और इस एक्सप्रेशन को मैंने नॉट नेगेशन के साथ पास किया, देन आई विल बी गेटिंग एज फॉल्स, तो इसने फॉल्स कर दिया। और इस वाले रिजल्ट ने हमें फॉल्स प्रोवाइड किया था, इस वाले रिजल्ट ने हमें फॉल्स प्रोवाइड किया था। अगर इस फॉल्स के आगे मैं नॉट पास कर दूं और तो हमें वही फॉल्स ट्रू मिल जाएगा। दिस इज नोन एज नेगेशन, और दीज आर नोन एज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। आफ्टर लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास जो अगले ऑपरेटर्स आते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। आई विल बी डिस्कसिंग दीज थ्री ऑपरेटर्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।